हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th इंग्लिश के दूसरे चैप्टर के साथ आपके सामने हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपको अच्छे से बता दूं मैं कि ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। और उसी में से कुछ हिस्सा यहाँ पे लिया गया है। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन का पूरा सार एक बुक में लिखा है और दैट बुक इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी and the name of the book is A Long Walk to Freedom. स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दूं मैं कि ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी में डिफरेंस होता है। ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय सेल्फ एंड बायोग्राफी इज रिटन बाय अदर। In detail, if we describe this, biography is a life story of a person written by someone else. Biography is a life story of a person written by someone else, and autobiography is a life story of a person written by himself or herself. स्वयं के द्वारा जो लिखा जाता है, अपने जीवन का सारांश लिखा जाता है, जीवन का जो वृत्तांत लिखा जाता है, that is called autobiography, but this is biography. So, A Long Walk to Freedom is autobiography. Nelson Mandela has written this. Nelson Mandela has written his own autobiography. Next, let's know something about Nelson Mandela. Nelson Mandela is a great revolutionary of South Africa. He has fought many fights against the people of his own country. In detail, if I go back in the past of South Africa's history, I tell you one thing. South Africa got independence in 1910. 1910. South Africa got independence in 1910. But the real freedom, as Nelson Mandela says, real freedom he got, his people got in 1994, after 84 years. One more thing. 1910 is called Independence Day of South Africa. Independence Day, but very remarkable and very new thing for that country. 1994, 27th April 1994 is celebrated Freedom Day in South Africa. Please try to understand this. Africa got independence in 1910, but the real freedom, in the words of Nelson Mandela, was got by the people of South Africa in 1994. This lesson, this excerpt or this part has been taken from A Long Walk to Freedom. In this very part, a writer, or I can say Nelson Mandela, says about a small incident, very significant incident of his life, of his career, of his struggle. So that day is very much important, and that day is celebrated here in this lesson. That day has been described here in this lesson, and we shall discuss and read and learn and
prepare this lesson from that point of view. A long walk to freedom. This lesson deals with a ceremony. This lesson deals with a ceremony, and that ceremony is called inauguration ceremony. Inauguration ceremony. We know Nelson Mandela is the first black president of South Africa. In detail, I tell you the story. 1910 में जब आजाद हुआ साउथ अफ्रीका अंग्रेजी राज से जब आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद उसको एक लड़ाई और लड़नी पड़ी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमें एक लड़ाई और लड़नी पड़ी अपने ही देश के लोगों के साथ। अपने देश के गोरे लोग हैं, जो व्हाइट स्किन पीपल हैं, जो गोरी चमड़ी के लोग हैं वो, और काली चमड़ी के लोग हैं, उन दोनों के बीच में बहुत लंबा संघर्ष चला। संघर्ष के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि गोरी चमड़ी के लोग अपने आप को सुप्रीम मानते थे। वो कहते थे कि सत्ता करने का, सरकार चलाने का, शासन चलाने का और हर प्रकार की जो सर्वोच्च पद हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ अधिकार है तो सिर्फ व्हाइट स्किन पीपल का, श्वेत लोगों का, गोरी चमड़ी के लोगों का अधिकार है। सिटीजन, ब्लैक स्किन पीपल, ब्लैक पीपल एंड व्हाइट पीपल। श्वेत और अश्वेत दोनों तरह के लोग देश के नागरिक, लेकिन सर्वोच्च पदों पे अधिकार सिर्फ श्वेत लोगों का। बोथ आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, बट they were deprived of the highest post and supreme posts by these white skin people. So there was a great battle between white and black. Black means अश्वेत। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष चला अपने अधिकार पाने का। फाइट फॉर राइट, इफ यू से दैट वाज द फाइट फॉर राइट, एंड दिस फाइट कंटिन्यूज फॉर 84 years, एंड आफ्टर ऑल दे वन। अश्वेत जो ब्लैक स्किन पीपल हैं उनकी जीत हुई और एक जनरल इलेक्शन करवाया गया जिसमें सभी को इलेक्शन फाइट करने का राइट दिया गया, और इलेक्शन के रिजल्ट आए 27 अप्रैल 1994 रिजल्ट आए, और नेल्सन मंडेला की पार्टी सर्वोच्च पार्टी बनी, सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनी, और पार्टी बनने के बाद नेल्सन मंडेला को उस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया, उसका लीडर चुन लिया गया और वो प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। और इस तरह से साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए 27 अप्रैल। बट द डे विच इज डिस्क्राइब्ड हियर इज 10th May। 27 अप्रैल को जब रिजल्ट आया उसके बाद एक स्वेरिंग इन सेरेमनी, जो शपथ ग्रहण समारोह का दिन फिक्स किया गया, एंड दैट डे वाज 10th May। इन द मीन टाइम 10 मई को जब शपथ ग्रहण समारोह होना है, इन द मीन टाइम नेल्सन मंडेला ने पूरी दुनिया भर के लोगों को इनवाइट किया। पूरी दुनिया भर के जो बड़े बड़े डिग्नेटरीज थी, बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन सबको आमंत्रित किया। देयर वाज अ ह्यूज crowd there of the people, of the dignitaries. So this sworn in ceremony is called inauguration ceremony। Inaugurate आप जानते हैं, inaugurate means something that is started, beginning। शुरुआत किसी चीज की होती है, उसको इनोग्रेट करते हैं, उसका शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं।
तो दिस वाज अ स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू रेजाइम, ए न्यू एरा ऑफ नॉन रेशियल, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये सरकार एक ऐसी सरकार चुनी गई थी जो कि बिना किसी रंग रूप के, बिना किसी जातीय भेदभाव की चुनी हुई सरकार थी, जिसमें सभी स्किन के लोगों का बराबर का मौका दिया गया था, सबको बराबर का अधिकार दिया गया था और सारे मिलकर सरकार चला रहे थे। तो एक फर्स्ट नॉन रेशियल एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मंडेला सेज दिस इज फर्स्ट नॉन रेशियल एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। First time in 1994, a non-racial and democratic government was established by the people of South Africa. So this was a great battle. And Nelson Mandela named it apartheid. अपार्थिड रंग भेद नीति, इन हिंदी भी से रंग भेद नीति। Apartheid is a policy that discriminates people according to their race and color of their skin. So this apartheid was completely abolished in 1994 and a new day dawned in South Africa. A new beginning was there, a new inauguration was going to take place. So this is a great lesson. This is very effective and impressive lesson. So many things, so many learnings we shall achieve, we shall grab from this lesson. So be careful. Great lesson you are going to face. So as I told you earlier, A Long Walk to Freedom is his autobiography. उनकी जीवनी है, जीवनी का कुछ हिस्सा यहाँ पे लिया गया है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जो स्वेयर इन सेरेमनी है, वो एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग वाली है। हम एक एक करके पॉइंट को देखेंगे। इनॉग्रेशन सेरेमनी है। इनॉग्रेशन जो सेरेमनी है, that is considered the largest gathering in South Africa. जो उनका शपथ ग्रहण का समारोह है, in South African history this has been the largest gathering in South Africa. So this is a very important incident in the life of Nelson Mandela as well as in the history of South Africa. This is taking place in Pretoria. Pretoria, the name of the building in which the ceremony is there, that is Union Buildings. Union Buildings, a great building, Union Buildings. ये शपथ ग्रहण समारोह प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में हो रहा है। और यूनियन बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग रही है जो कि व्हाइट गवर्नेंस की, व्हाइट पीपल की सुप्रीमेसी की एक सिंबल रही है, व्हाइट सुप्रीमेसी का सिंबल रही है। व्हाइट सुप्रीमेसी, श्वेत लोगों की सर्वोच्चता का प्रतीक रही यूनियन बिल्डिंग के अंदर ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। ये बहुत बड़ी इंसिडेंट है। और यहाँ पे एक और शब्द यहाँ पे यूज करता है कि ये सारे के सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने के बाद एक रेनबो लगता है। ऐसा लगता है नेल्सन मंडेला को कि रेनबो मीन्स, रेनबो एक जो हम मल्टी कलर्स को बोलते हैं, बहुत सारे रंगों की जो एक छवि होती है उसको रेनबो बोला जाता है। तो यहाँ भी बहुत सारे अलग अलग तरह की छवि के लोग इकट्ठे हो रखे हैं और इकट्ठे हुए उन लोगों को जो नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट हैं वो रेनबो का नाम देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं और सभी के सभी मल्टी कंट्रीज के लोग हैं, वो सारे के सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं और बहुत ही शानदार नज़ारा है। और यहाँ पे आने के बाद नेल्सन मंडेला अभिभूत हो जाते हैं उनको
देख के और कहते हैं कि इस धरती के ऊपर on this very earth in South Africa there has never been such a gathering, there have never been such a huge crowd of people who are gathered here, who are so much interested, so much enthusiastic that they came here to be witness of this whole incident. सो स्वेरिंग सेरेमनी बहुत जो लाजवाब इंसिडेंट यहाँ होने वाली है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला आते हैं अपनी बेटी के साथ में, डॉटर के साथ, फैमिली में से उनकी डॉटर उनके साथ आती है और डॉटर का नाम जिनानी होता है, उनके साथ आती है और आते ही शपथ ग्रहण का समारोह शुरू होता है। और शुरू होते ही सबसे पहले जो शपथ लेते हैं, सबसे पहले शपथ लेते हैं सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी मच नेसेसरी टू बी रिमेंबर्ड। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट डी क्लार्क, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। आफ्टर दैट फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थाबो मोबेकी। उसके बाद थाबो मोबेकी शपथ लेते हैं फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की, और उसके बाद आफ्टर दैट नेल्सन मंडेला एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। पूरी दुनिया बड़ी आतुर होती है, दे आर वेरी मच क्यूरियस टू हियर द पर्सन हु हैज फॉट सच ए बैटल फॉर दिस स्ट्रगल। he also faced and experienced 40 years of jail. He was imprisoned for 40 years due to violation of the rules. He struggled, he was a great revolutionary, और इतना बड़ा क्रांतिकारी था कि क्रांति के दौरान ही इन्होंने 40 साल की सजा काट के आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद इलेक्शन फाइट किया, और जिस मकसद से उनका जीवन शुरू हुआ था, उसी मकसद से, जिस मकसद से वो जेल गए थे, उसी मकसद से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की। एंड ही सेड दैट दिस इज नॉट द विक्ट्री ऑफ माई सेल्फ। आगे हम करेंगे इसको। तो इसके बाद जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट होता है, फिर फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं। तो वो शपथ में क्या कहते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। शपथ में इनकी शपथ को हम जो है ना, इनकी जो ओथ होती है उसको हम थोड़ा सा डिवीजन करेंगे। उन्होंने 3 डिवीजन किए हैं। 3 डिवीजन में उनको बताया। फर्स्ट में ही रिमेंबर्स स्ट्रगल, struggle and suffering. छोटी सी small size of pledge is there in this lesson, so we shall divide this pledge in the 3 parts. In first part, he remembers his struggle and suffering during the revolution, during his lifetime. अपने जीवन भर के दौरान जो भी स्ट्रगल उन्होंने फेस किया, जो भी सफरिंग फेस की, he remembers. He says that this is a newborn liberty. This is a newborn liberty for which they sacrificed, they struggled a lot, sacrificed a lot, and after that we got it. पहली जो चीज है उसमें ये कहता है कि this is a newborn liberty. Secondly, he declares it an extraordinary human disaster. एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण मानवीय तबाही बोलता है। नेल्सन मंडेला declares it a national disaster, extraordinary human disaster, because
So many people sacrificed here. So many people given their life on stake. So they got, but after a lot of struggle. डिजास्टर बहुत बड़ी बर्बादी बोलता है, बहुत बर्बादियां, बहुत तबाहियां देखी है उन्होंने, बहुत डंडे खाए हैं, बहुत पिटा है, बहुत सारा संघर्ष देखा है, बहुत पीड़ाएं देखी, तकलीफें देखी हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बलिदानियां दी हैं. तो इन फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज प्लेज ही इज remembering, he is recollecting all his memories of that struggle, and he says that there is a great rise, a great rise, great rise of society, great rise of humanity, great rise of liberty and सोसाइटी. एक समाज में एक ऐसा उत्थान, एक नया सवेरा आएगा जिसको पूरी ह्यूमैनिटी जो है, होल ह्यूमैनिटी विल विटनेस. पूरी की पूरी दुनिया इसका गवाह बनेगी. एक ऐसा संघर्ष जिसको पूरी दुनिया ने देखा, उस संघर्ष के बाद जो रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट को पूरी दुनिया देख रही है. तो एक ऐसा राइज, ये ऐसा समाज का ऐसा राइज हम देखेंगे जिससे कि पूरी की पूरी सफरिंग और जो पूरा स्ट्रगल था, दैट विल बी लेफ्ट बिहाइंड एंड वी शैल प्रोसीड. तो पहले पार्ट में, अपने जो शपथ के पहले हिस्से में, वो बहुत अच्छी बात अपने संघर्ष के दिनों को याद करता है. इन द सेकेंड पार्ट ऑफ हिज प्लेज, in the second part of his pledge, he remembers, he thanks all world leaders. He thanks all world leaders that they came to attend the ceremony and witnessed this historic event in his country. A great transformation is being witnessed by the people of the whole world. Whole world was watching, and the head of the nation and many dignitaries were there on his own soil. So he thanks all the people. They know, वो कहते हैं कि वो जानते हैं इस चीज को, जो लोग यहाँ पे आए हैं वो जानते हैं इस चीज को. They know this is the victory for justice, this is the victory for peace, this is the victory for human dignity. They know, all the people of world. No, the importance of coming here, the importance of coming here. And they know this is the victory of justice, victory of justice. This is the victory of justice. This is the victory of humanity. This is the victory of peace, victory of justice, victory of peace. And so the greatest thing, this is the victory of human dignity. This is the victory of human dignity. पहले पार्ट में वो अपने संघर्ष के दिनों को याद करता है. प्लेज का छोटा सा हिस्सा यहाँ लेसन में दिया गया है. इन फर्स्ट पार्ट ही रिमेंबर्स द डे ऑफ हिज स्ट्रगल एंड हिज सफरिंग. इन द नेक्स्ट सेकंड पार्ट he thanks all the people throughout the world who came to his country and attended this ceremony and came on his own soil and witnessed this historic event. In the third part, he says that this is a time of political emancipation. Political emancipation. Emancipation means liberty. ये समय एक राजनीतिक आजादी का है, राजनीतिक आजादी का समय है.
और इसको हम भरपूर एंजॉय करें, और इस एंजॉय के साथ साथ जो जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमें मिली हैं, उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज और उन ड्यूटीज के साथ हम जस्टिस करें। जो हमें जिम्मेदारियां मिली हैं उस जिम्मेदारियों को हम पूरी तरह से निभाएं। और ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी हैव गॉट अ पॉलिटिकल इमेंसिपेशन एंड फॉर दिस वी प्लेज, आओ हम शपथ लें इस चीज की कि वी शैल लिबरेट द पीपल फ्रॉम such prejudices, such suffering and discrimination. He says that the time has come and we have achieved political emancipation, and through this political emancipation, let us liberate the people of our country from all types of suffering and all types of prejudices and all types of discrimination that we have faced up to now. Now, this is the time to liberate the people from this. And he hopes next that we shall never face, this country will never face such suffering and inhuman indignities. उम्मीद करता हूं कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की अमानवीय कृत्यों को, अमानवीय घटनाओं को, अमानवीय प्रताड़नाओं को ये देश दोबारा फेस नहीं करेगा। दिस country will never face such type of human indignities in future. And the new rise is there, and we shall not fight in future, but we shall fight against these types of prejudices in future. And he also says the sun will never set on so glorious a human achievement. Great thing, very great thing, a glorious human achievement. Glorious human achievement. अपनी प्लेस के एंड में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, कभी अस्त नहीं होगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका। God bless Africa. In short, if I say, नेल्सन मंडेला पहले काले राष्ट्रपति, काले ब्लैक स्किन, काला बोलना थोड़ा सा अजीब होता है, ब्लैक स्किन पीपल श्वेत राष्ट्रपति बने। 10 मई 1994 को उन्होंने शपथ ली। शपथ ग्रहण में बहुत सारे लोग आए हुए थे। यूनियन बिल्डिंग, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग, जो कि अभी तक श्वेत लोगों की सर्वोच्चता का प्रतीक हुआ करती थी, उसमें एक कार्यक्रम होता है। शपथ ग्रहण में वह अपनी बेटी के साथ आते हैं। बेटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, बेटी के साथ आना, दैट इज ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इंसिडेंट। जेनानी के साथ आते हैं। सबसे पहले डेप्टी प्रेसिडेंट डी क्लार्क शपथ लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट थाबो म्बेकी स्वर्न इन करते हैं, एंड आफ्टर दैट नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ टेक्स एन ऑथ ऑफ इंटीग्रिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अपने जब संबोधन शुरू करते हैं, अपने शपथ को शुरू करते हैं, शपथ शुरू करते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी तक जो हमने अभी तक जो सफरिंग और जो हमारे स्ट्रगल देखा है, उसके बाद एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह न्यूबॉर्न लिबर्टी आई है हमारे सामने, कि बहुत तकलीफों और बहुत संघर्षों के बाद ये हमें नवजात आज़ादी मिली है। ये एक ऐसा धारण ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बाद मिली है, ऐसा धारण मानवीय बर्बादी के बाद मिली है। ऐसा धारण क्यों कहता है? ऐसा धारण इसीलिए कहता है बिकॉज सच टाइप ऑफ इंसिडेंट, सच टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट फाउंड एनीवेयर, एंड इफ इट इज फाउंड, दिस इज इनह्यूमन, एंड if it is inhuman, that it is being subdued, then it is disaster.
So this is extraordinary human disaster, and he says that all types of society, all of the rise of society of which all humanity will be proud, we shall make such society on which the whole world will be proud of, next, in his pledge, he thanks all the people from the world who came here to attend this ceremony. And after attending this, they are also experiencing the change, the transformation in this new country, this new regime, this new reign, new government. He thanks all the people, all the dignitaries, as well as the head of the nations, as well as the companion of his struggle and revolution were present there. He remembers all the predecessors who sacrificed their life in this ordeal, in this struggle. He also thanks all the people, and in the third phase of his pledge, small pledge, he says that this is a new time, new era has begun, and we shall celebrate it. We have got a political emancipation, and in this political emancipation, we shall never let the people face such struggle in future again. लोगों को दोबारा से कभी ऐसा संघर्ष, ऐसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े. एंड लेट अस लिबरेट पीपल, ये भी कहता है साथ साथ, लेट अस लिबरेट पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. आओ हम लड़ें, गरीबी से लड़ें, अभाव से लड़ें, अशिक्षा से लड़ें, स्वास्थ्य की जो कमियां हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की, उन सुविधाओं की कमियों से लड़ें. एंड वी शैल स्ट्रगल एंड वी शैल लिबरेट पीपल फ्रॉम सच indignities, such discrimination, such poverty, deprivation, all types of these things which are lack in the country. We shall fight against them and we shall liberate the people. And he also says that we will never face such inhuman dignities in future. Human indignities, both are the same. इस प्रकार की मानवीय जो मानवीय कृत्यों को हम दोबारा से महसूस नहीं करें, दोबारा से सामना न करें. और एक ये जो सूर्य, जो एक ऐसा धारण मानवीय उपलब्धि का सूर्य जो साउथ अफ्रीका में उदय हुआ है, इस सूर्य का अस्त कभी ना हो, ऐसा सूर्य हमेशा चमकता रहे. और इसी बात के साथ वो कहता है कि गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका का भला करे. तो ये एक फर्स्ट पार्ट था हमारे इस लेसन का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था. इसके बाद हम प्रोसीड, लंबा लेसन है, इसलिए हमें वी शैल मेक 2 पार्ट्स of this lesson. So in this first part we discussed about the inauguration ceremony, and in the next part also we shall proceed this inauguration ceremony, this sworn in ceremony, in the same way. So up to now